हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ सलीम और उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में 3.5 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी और उसको हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, सिर्फ 2 सवाल रह गए। तो आज हम बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमने आज शुरू करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k in 3x squared plus 5x plus k equal to 0 have rational roots, complex roots, and equal roots. So, given equation is, this is question number 5. Three x squared plus 5x plus k equal to 0. So this is our equation. So we have a equal to 3, b equal to 5, and c equal to k. Now we find d equal to b square minus 4ac, d equal to b square. So we have 5 square minus 4 multiplied by a is 3 and b is c is k. So b equal to 25 minus 12k. Now first part, rational roots. So what are rational roots? Rational roots क्या होते हैं? अगर आपके पास जो d की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसमें k की वैल्यू इंसर्ट करनी है और k की वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हमें ये देखना है कि जो आपके पास पूरा ओवरऑल जो आंसर आ रहा है d का, वो आंसर क्या आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अगर वो आंसर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो इट मीन्स के रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो वी हैव b इक्वल टू so b equal to 25 minus 12k. Now we form a table here. Insert
table. Okay, here is B. अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें k की वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देखिए अगर k की जगह पे 0 होगा तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, so we have only 25. So 25 is a perfect square. Therefore 0 is possible. Value of k is equal to 0. So we have d equal to 25, which is a perfect square. Now k equal to 2. If k is equal to 2, then 12 multiplied by 2 is 24. So we have 25 minus, so we have 25 minus 24 equal to 1. So this is also possible. And if k equal to minus 2, then we have d equal to 49. If you look at this, this is 12, 12 multiplied by k, 12 multiplied minus 2, so minus minus plus, 12 to 24, 24 plus 25 is equal to 49. For example, d is equal to 25 minus 12 multiplied by minus 2. So this is equal to d equal to 25 plus 24 equal 49. 49. So this is equal to 49. If k is equal to 3/4. ये वैल्यूज आपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चेक करनी है, तो जितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी वो आपने लिखनी है। So k is equal to 3/4. If k is equal to 3/4, then we have so this is equal to 3/4. This value is equal to 9. And this is minus. So we have 16. 16 is a perfect square. Now k is equal to 4/3. Then we have 4/3 here. So we have 16. 25 minus 16 is 9. 9 is also a perfect square. So these are the values of k for which roots of the equation becomes rational. Now part number, sorry, this is part number 1. Part number 2. So what is part number 2? Complex root. Complex root is complex root. So roots are complex if we have d is less than 0. So what we will do, we will let this value less than less than 0. So this is equal to 25
is less than 12k. So we have 25 divided by 12 should be less than k. So what is so this is 2.08 approximately. So 2.08 should be less than k should be greater than 2.08. If value of k is greater than 2.08, I mean 3, 4, 5, 2.5. So the roots of the equation becomes complex. Now let's next part. Roots of the equation becomes equal. If d is equal to 0, then roots are equal. So we'll take this value equal to 0. D should be equal to 0. So we have 25 equal to 12k. So we have k equal to 25 upon 12. This is our required answer. ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होगा कि आपने मुख्तलिफ जो आपको पार्ट दिए हुए हैं उसमें आपने उसके पार्ट्स के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या सवाल दिया था, सवाल को रीड करते हैं। Show that the roots of the equation x minus p, x minus q plus x minus q plus x minus r plus x minus r plus x minus p is equal to 0 are real and they cannot be equal unless p equal to q equal to r। तो पहले इस सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमें ये करना है कि हमें इसको प्रूफ करना है कि रूट्स रियल होंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है वो दी है x minus p bracket close x minus q plus bracket x minus q bracket x minus r plus bracket x minus r x minus p equal to 0। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि सवाल को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट x स्क्वायर minus x cube
minus px minus minus plus. So we have p cube plus x squared minus xr minus x cube plus qr plus x squared minus xp minus rx plus rtr. So this is equal to 0. Now x squared plus x squared plus x squared is 3x squared minus px, and this minus px is minus 2xp minus 2xp minus 2x cubed x cubed and minus 2 xr plus pq plus qr plus pr equal to 0. Now taking common x 2x from these three terms, so we have x squared minus 2x bracket open p plus 2 plus r plus pr plus qr plus rt equal to 0. So this is our standard quadratic equation. Now we will find value of d. D equal to p square minus 4ac. So we have d equal to, d is minus 2 bracket open p plus q plus r bracket close square p square minus 4a is 3 and c is pr plus qr plus should be equal to pq. So this should be equal to pq plus pq. Now d equal to 4 minus 2 square is 4. So we have p square a plus b plus c whole square. This is equal to a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca plus 2pq plus 2rp plus 2 times of 2r. So minus 4 times of bracket open. We are only multiplying this 3 by this whole bracket, not by 4. So we have 3pq plus 3
QR plus 3RP. Now D equal to 4, taking common 4 from the above step. So we have this whole value is equal to this value minus this. Now B equal to 4 times of minus QR minus RP, and this is equal to माइनस पी क्यू। क्या किया है हमने यहाँ पे, 2 PQ में से 3 PQ को माइनस कर दिया, तो हमारा माइनस PQ आ गया। सिमिलरली बाकी वैल्यूज भी आ गई हमारे पास। नाउ D इज इक्वल टू 2 multiplied by 2, so we have this whole bit। अब हम करेंगे क्या, ये हमने 4 को ब्रेक कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 में, इस वाले 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। So this is 2, this is 2, and this one is also 2। Now हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे पहले। तो रियल प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला इस तरीके से इसको अरेंज करना है फॉर्मूले को कि तमाम वैल्यूज क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये पी स्क्वायर तो हम ब्रेक कर लेंगे 2 दफा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे 2 दफा, और आर स्क्वायर को भी ऐसे करेंगे। प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, and this value is same as in above step। ये करने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। सो d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ओपन, एक पी स्क्वायर उठा लेते हैं उसमें और एक क्यू स्क्वायर उठा लेते हैं। सो वी हैव पी स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। So we have another p square minus 2RP
प्लस आर स्क्वायर। फिर हमारे पास एक क्यू स्क्वायर रह गया था ये वाला, ये लिखेंगे यहाँ पे -2QR प्लस आर स्क्वायर ओनली ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं सारी की सारी, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गई, ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर बन गई आपके पास, ये वाली वैल्यू भी a माइनस बी होल स्क्वायर आ गई, b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ओपन b माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस r होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस r होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए इसके सवाल के अंदर आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन जो बन रही है इसमें तमाम वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव आएंगी हमेशा। मतलब ये कहने का कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर p माइनस क्यू p माइनस आर क्यू माइनस आर नेगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आपकी वैल्यू होगी वो हर सूरत में क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। ये आपके पास बेसिकली रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए। So roots of the equation are real। और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो एंड हो गया। अब आपने सेकंड पार्ट के लिए करना कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स आर इक्वल एफ ई इक्वल क्यू एफ ई इक्वल क्यू इक्वल टू आर। सपोज कर लेते हैं ये पूरी वैल्यू जो है वो एक्स के इक्वल है। तो इस इक्वेशन नंबर ए में इक्वेशन ए में हम जहां पे भी पी आ रहा है क्यू आ रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे, वहां पे हम पुट कर देंगे जी एक्स, सॉरी। तो b इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, तो d इक्वल टू 0। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये एंड हो गया। तो हमने करना क्या है बेसिकली, हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर एक्स माइनस आर एक्स माइनस पी जो है हमने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको रीअरेंज किया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास, 3x स्क्वायर माइनस 2x p प्लस क्यू प्लस आर
प्लस पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू पी। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू पुट करी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा हमने, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2pq, this 2pq minus 3pq is minus pq। सिमिलरली आरपी भी आ जाएगा, क्यू आर भी आ जाएगा आपके पास। फिर 4 को ब्रेक कर लिया हमने, इस वाले 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2p स्क्वायर ब्रेक कर लिया, एक पी स्क्वायर को इसके साथ अरेंज कर दिया, एक पी स्क्वायर को आर स्क्वायर के साथ अरेंज कर दिया, एक क्यू स्क्वायर को दूसरे आर स्क्वायर के साथ अरेंज कर दिया। अब फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के बाद हमने इस पूरी वैल्यू को देखा कि ये तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो उसके बाद उसने कहा था कि भाई रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इफ एंड ओनली या अनलेस p इक्वल टू q इक्वल टू r। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमने इसको x इक्वल के दिया, तो ठीक है ना। तो जहां पे भी आ रहा है आपके पास जैसे से इनकी सपोजिशन करें, x इक्वल सपोज किया, तो जहां पे भी आपके p आ रहा था वहां पे x आ जाएगा, जहां q आ रहा है वहां पे x आ गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड हो गया। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है सिमिलर है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 आपने खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में वैनिश। तो वैनिश का मतलब ये होता है कि जो आपके पास रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो आपके पास यानी जो आपकी कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस। तो इसको करने के लिए पहले मैं जरा थोड़ा सा कुछ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिफाइन करूंगा पहले। तो एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is the equation, quadratic equation, then we have two roots. So what are these two roots? So this is plus, so this is alpha, this is alpha alpha। एक रूट तो आपके पास अल्फा आएगा, यानी हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपके पास दो रूट आते हैं। जो दो रूट आ रहे हैं आपके पास, वो क्या आ रहे हैं, एक रूट तो आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू प्लस, और दूसरी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी आपके पास बीटा। इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो ये बीटा,
तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास अल्फा आ जाएगा और ये बीटा आ जाएगा। तो अब हम डिफाइन करेंगे सम ऑफ रूट्स को। सम ऑफ रूट is equal to alpha plus beta equal to माइनस b डिवाइड बाई a। ये कैसे आया? ये हमने इन दोनों को ऐड किया, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो रूट्स हैं ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉजिटिव वाले को हमने अल्फा बोला है, नेगेटिव वाले को हमने बीटा बोला है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस टू बी अपॉन टू ए आएगा और ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये बनेगी। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन। अब ये वाली कैसे आई? दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा और जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो आंसर आएगा वो सी अपॉन ए आएगा। ये दो फॉर्मूले जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। फिलहाल हम इनको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको दोबारा से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन में वैनिश। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? वैनिश हो जाएंगे। तो हमें कंडीशन मालूम करनी है। तो कंडीशन मालूम करने के लिए हम करेंगे कि हम इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें फाइंड कर लिया, या अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या आएगा? पूरी वैल्यू आ जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? ये वैल्यू आ जाएगी बस। तो हमें क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन we have alpha and beta is equal to 0। अल्फा भी 0 आपके पास और बीटा भी 0 है। So we have sum of roots equal to 0, क्योंकि आपके पास अल्फा भी 0 हो जाएगा और बीटा भी 0 हो जाएगा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन ए। So since it is given that a is not equal to 0, a is not equal to 0। So ये देखिए कि आपको ये क्वेश्चन में जो मेंशन है ना, ऊपर क्वेश्चन में जो मेंशन है वो a इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर a 0 नहीं है तो लाजमी तौर पे b को 0 होना चाहिए, क्योंकि इस पूरी वैल्यू का आंसर 0 आ रहा है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, b शुड बी इक्वल टू 0। पहली कंडीशन हमारी क्या आ गई कि b को 0 होना चाहिए। इसको मैं अगर बोल कर दूं तो b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सिमिलरली
अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्रूफ की तरफ आएंगे तो इसमें भी अल्फा जीरो है, बीटा जीरो है, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, सो सी शुड बी इक्वल। ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई, यही हमारा आंसर है। और इसी को आपने यूज करके क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को अप्लाई करना है और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको खुद से करना है। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज करिए, रिप्लाई करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे करिए या फिर कमेंट सेक्शन में करिए, तो आई विल आंसर। वैसे इंशाल्लाह हो जाएगा, यही। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इन दो फॉर्मूलों की मदद से अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ये बेसिकली हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी टॉपिक है। तो मैंने इसी को इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। ये ज़्यादा इजी मेथड है समझने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।